In the last lecture, we had discussed about the few rules, right? We had also discussed the power rule, and in this lecture today, we are going to discuss three things. One is some basic formulas which we have to remember. All right. Second is when two functions are multiplied, then how to find its derivative. And third is when the two functions are divided, right? They're in division, then how to find their derivative. Okay, so you have to remember some important formulas. So some important formulas, okay, which you have to remember. All right. Okay, so first of all, we will take derivatives of trigonometric functions. So derivatives of trigonometric functions. All right. So first of all, derivative of sin x. Derivative of sin x. So we have to remember that it is cos x. You have to memorize it. ठीक है, ये कैसे derive होता है, that is discussed in mathematics. All right. But for physics we did not know कि वो derive कैसे होता है. We just need to know कि वो कितना होता है. Okay. And then derivative of cos x, that is minus sin x. Derivative of tan x is sec square x. So we have to memorize this. Okay, apart from this, derivative of cot x is minus cosec square x. So where there is tan, it is sec square x, whereas cot, it's cosec square x. Okay, and derivative of sec x is sec x tan x. It's a product, sec x into tan x. Okay, and derivative of cosec x, it is minus cosec x cot x. So you have to memorize this, and it's simple. Where there is tan, there is sec, cot, cosec, tan, sec, cosec, cot, cosec. Okay, so you have to memorize this. So derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is sec square x, derivative of cot x is minus cosec square x, derivative of sec x is sec x tan x, derivative of cosec x is minus cosec x cot x. Alright, so you have to remember this. Please note down this. Okay, there are two more important formulas which you have to remember. Okay, so exponential, okay, let's talk about exponential function. So exponential function, so e raised to x, derivative of e raised to x is e raised to x. So this is the only function, in which even after taking the derivative, the function does not change. It remains as it is. Okay, as it is, it remains like that. So it does not change. Okay. So this is exponential function, and then we have the logarithmic function. So logarithmic function. Okay. So if you want to find derivative of ln x, that is 1 by x. So you have to memorize this. Okay. Now what is ln x? Ln x is log x to the base e. This is called as natural log. This is called as natural log. All right. So ln x is log x to the base e. It's called a natural log. So whenever you have ln x, the derivative will be 1 by x. Okay. Now the next question is, sir, if the base is not e, this is e. If the base is not e, it is some a, then what is the derivative?
then what is the derivative? So we will discuss this question. Okay, if the base is e, that is ln x natural log, then it is 1 by x. But otherwise, if the base is some other constant, right, a, where a is not equal to 1, okay, so a is not equal to 1 or a का क्या values है, that will be discussed in mathematics. We will not discuss it here. We'll just see कि इसका derivative क्या होगा. Okay, okay, so please note down this. I'll tell you what will be its derivative. Okay, okay, so now let us discuss कि अगर base is not e but base is a, तो derivative क्या होगा. Okay, so for this first we'll try to understand one thing, right, one concept. तो logarithm में क्या होता है, जैसे मानिए आपके पास है log b to the base a. Okay, so this is actually, this can be written as log b to the base c divided by log b a to the base c. ये एक formula होता है log का. This is, we can write it like this. You can take some other base, right? You can write log b to the base a as log b to the base c and log a to the base c. So this is same as this or this is same as this. Okay. Okay. So similarly, what we can do is we can write log x to the base a as log x to the base e and log a to the base e. Okay. So this is same as this. Now if you want to find derivative of this term, that is log x to the base a, this will be same as derivative of, this is what, this is ln x. Now this is ln x, right? This is ln x, so you can write ln x, and this is ln a, this is ln a. Okay, so you can write this is same as derivative of ln x by ln a. Now this ln a is a constant, right? And we know that constants must be taken out of the derivative. So 1 by ln a will be taken out, and what will remain is derivative of ln x. Okay, so the answer will be, because derivative of ln x हमें पता है, that is 1 by x, right? वो अभी बताया था आपको, derivative of ln x is 1 by x. तो यहाँ से जो आंसर आएगा, यानी derivative of log x to the base a जो आएगा वो आएगा, इसका हो जाएगा 1 by x, तो वो हो जाएगा 1 by x ln a. ये हो जाएगा आंसर. ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से कि log b to the base a can be written as log b to the base c log a to the base c. ba c c, ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पे log x to the base a can be written as log x to the base e. We have taken a new base, and log a also to the base e. Now this is ln x, natural log x, this is natural log a. Okay, whenever the base is e, that is called as natural log. Okay, okay, so if I want to find derivative of this, so in place of this I will write this. So I have written this ln x by ln a. Now ln a is a constant, I will take it out, ये बाहर आएगा. Whenever a constant is multiplied with a function, right, we have discussed this, whenever a constant is multiplied with the function, then while taking its derivative, c will come out, constant will come out, and this will be derivative of f of x, right? We have already discussed this rule. So similarly here ln a, 1 by ln a will come out and ln x will remain inside, so it will be derivative of ln x. Okay, and derivative of ln x is 1 by x, so 1 by x ln a, that's the answer for this. Okay, so we have discussed some formula here, right, which you can memorize, you should memorize. Alright, and now we will discuss the product rule. Now we are going to discuss the product rule. So students, now we are going to discuss the product rule. Okay, so suppose we have two functions multiplied. Let us say I have f of x multiplied with g of x. Two functions, there are two different functions multiplied. Alright, and let us say I call it as some h of x. Okay, so this is the first function, this is the first function, this is
the second function. These two functions are multiplied and I have been asked to find out the derivative of this h of x. So that will be derivative of f of x multiplied with g of x. तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हमें याद रखना है. इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, राइट, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. वेरी सिंपल, ठीक है. ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हमने डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये डिस्कस होगा मैथमेटिक्स में, राइट. जो लोग मैथ्स लिए, जो पूरा डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ फिजिक्स में आपको यूटिलाइज करने के लिए फॉर्मूला याद रखना है. तो क्या है ये अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, एफ ऑफ एक्स इज मल्टीप्लाइड विद जी ऑफ एक्स, राइट, then the derivative of this will be f of x into derivative of d by dx of second function plus second function into derivative of first function. okay, इसको हम लोग इस तरह भी याद रखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूवी रूल. क्या कहते हैं? यूवी रूल, ठीक है. अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है यूवी का, u इज द फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया u और ये हो गया v, ठीक है, uv. तो अगर हमें ऐसे दो फंक्शंस, u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो अगर हमें ऐसे सिचुएशन में डेरिवेटिव निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा u इंटू, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं आप, u dv प्लस v du, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो ये इसको और भी एक आसान छोटा तरीका याद करने का, u dv प्लस v du, ठीक है. बट अगर आपको ये समझ में आया तो दैट्स वेरी गुड. इट्स वेरी सिंपल. पहला फंक्शन को एज इट इज लिखना है, पहले फंक्शन को एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव, दोनों का प्रोडक्ट, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और उसका प्रोडक्ट, यानी एफ एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, ठीक है. तो आप ये लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है. यू शुड मेमोराइज दिस, यू मस्ट मेमोराइज दिस. ऑलराइट, तो विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स. ओके, तो लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1. तो मान लीजिए आपके पास जो फंक्शन है वो दिया है आपको sin x इंटू कॉस एक्स, ये दिया है sin x इंटू कॉस एक्स, ऐसा फंक्शन है sin x मल्टीप्लाइड विद कॉस एक्स. और आपसे बोला गया है कि फाइंड व्हाट, फाइंड dy बाई dx, कि dy बाई dx फाइंड करना है. ओके, ठीक है. तो आप किसी को भी ले सकते हो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है. तो dy बाई dx क्या होगा, वो होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. समझ में आ रहा है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट्स ऑल. ओके, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताया था आपको, माइनस साइन एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, राइट. वो जो आपको मैंने फॉर्मूले का लिस्ट दिया था उसमें आप देख सकते हैं. तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और ये हो गया कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स. तो ये आ गया, तो ये हो गया. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, तो इस तरह से करना है, दैट्स वेरी सिंपल. ऑलराइट, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. देन लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, ठीक है. तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. मान लीजिए अभी दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ले लो, ठीक है. दो फंक्शन हो गए, एक हो गया साइन एक्स, एक हो गया एक्स क्यूब, दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है. ओके, समझ में आप लोगों को? तो दो फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है. आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट से सर ये x और एक्स क्यूब हो जाएगा साइन एक्स 4, ये गलत है.
ऐसा नहीं होगा। ये x जो है साइन के अंदर है, ये x जो है वो साइन के अंदर है, ठीक है, और वो x क्यूब साइन के बाहर है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो दिस इज रॉन्ग, ओके, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। सो फर्स्ट फंक्शन, you can try yourself, you can pause the video and try yourself. Okay, so first function into derivative of second function, d by dx of second function, plus second function into derivative of first function. Isn't it simple? Yes, it's very simple. First into derivative of second plus second into derivative of first. That's all, right? तो वो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin x, यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव निकालने के लिए you have to use the power rule, right? So this is x raised to n, तो वो हो जाएगा n into x raised to n minus 1, right? I hope आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। And this is plus x क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x। तो कुल मिला के आंसर आ गया, ये हो गया 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर sin x, और ये हो गया x क्यूब cos x, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, ये इसका आंसर है। आप चाहो तो x स्क्वायर कॉमन ले लो, राइट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। x स्क्वायर 3 sin x प्लस x cos x, तो ये कोई इतना जरूरत नहीं है स्टेप करने का, बट दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, राइट, आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, y इज इक्वल टू e रेज टू x sin x, e रेज टू x sin x, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए और मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। तो फिर से हमें dy by dx फाइंड करना है, ओके। तो e रेज टू x sin x, तो इसका dy by dx निकालना है, क्या होगा, फिर से फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा ex, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होगा, cos x, प्लस ये क्या है sin x, और डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम रहेगा, तो वो हो जाएगा e रेज टू x। तो बस ये आंसर है। अब आप चाहो तो इसमें e रेज टू x कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा cos x प्लस sin x। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस, एंड आई एम श्योर आपका भी आंसर यही आया होगा, राइट? You must have got the same answer because all of you are very, very smart students. Okay. Now, please note down this and we will take another question. Let us take e raised to x cos x. चलिए अब आप ये ट्राई करिए, ठीक है, पॉज करिए, ट्राई करिए। तो दैट्स वेरी सिंपल, e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा यहाँ पे, साइन की जगह cos, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट्स ऑल। तो e रेज टू x cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, सो माइनस साइन x, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर रहे हैं, और ex का डेरिवेटिव e रेज टू x, तो e रेज टू x और अंदर क्या बचेगा अपने पास बचेगा माइनस साइन x प्लस cos x, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, e रेज टू x ln x, e रेज टू x ln x लेते हैं, ठीक है, ये ट्राई करिए आप, यहाँ वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ऑलराइट? मीनवाइल आई विल सॉल्व दिस, ओके। तो ये मिटा दूं मैं, ठीक है, एंड रब दिस, नोट इट डाउन, ओके। सो अब यहाँ पे आप देखो, दिस इज e रेज टू x ln x, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब d by dx ऑफ ln x प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब d by dx ऑफ e रेज टू x, ओके। सो e रेज टू x ऐसे कैसे रह जाएगा, d by dx ऑफ ln x हो जाएगा 1 by x, राइट? अभी बताया था मैंने आपको, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x प्लस ln x एज इट इज रह जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू x, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है e रेज टू x, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 by x प्लस ln x, समझ में आप लोगों को, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। आई एम श्योर आपको प्रोडक्ट रूल क्लियर हो रहा होगा। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स बिकॉज द कॉन्सेप्ट हैज टू रियली बी क्लियर, है ना? तो अब लेते हैं हम लोग x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर
ठीक है, 7x² इंटू tan x। तो ये अगला है, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है x³ प्लस 7x² और ये दूसरा फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो लेट अस यूज द प्रोडक्ट रूल, ऑलराइट। सो dy बाई dx क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन dy बाई dx ऑफ tan x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x³ प्लस 7x²। ओके, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 7x², बिकॉज इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसका निकालना है। tan x का होगा sec²x, अभी मैंने आपको एक लिस्ट दिया था फॉर्मूला का, वो याद रख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। ये हो गया tan x एज इट इज आ जाएगा, राइट, ये दोनों एज इट इज आ गए क्योंकि इनका डेरिवेटिव नहीं निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पावर रूल लगेगा, तो x³ का हो जाएगा 3x² और 7x² का हो जाएगा 14x। ठीक है, ये मत पूछना सर ये कैसे हुआ, इस पे हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो वो आप अच्छे से करिए, हर वीडियो को अच्छे से करिए, नोट्स बनाइए। तो ये 3x² कैसे हो गया, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये कैसे हुआ, 2 आगे आएगा, 7 टू 14, 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 यानी x आएगा 14x। ठीक है, ओके, सो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, सो लेट मी रिमूव दिस फ्रॉम हियर। सो इस तरह से जो है हमें प्रोडक्ट रूल करना है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिवीजन रूल। ठीक है, कि डिवीजन रूल क्या होता है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो यहाँ पे आई एम राइटिंग Okay, so what is division rule? So अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास, let us say we have f of x by g of x। ठीक है, इसको हम लोग u by v रूल कहते हैं, u by v रूल। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u by v, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ f of x बाई जी ऑफ एक्स हो जाएगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट होंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आएगा आपका सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर यानी जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आएगा सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स माइनस आएगा। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसको ऐसा भी बोलते हैं, इस रूल को, इसको बोलते हैं वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर। ये ज्यादा इजी तरीका है इसको याद करने का। तो v इज द सेकेंड फंक्शन, u इज द फर्स्ट फंक्शन, सो सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाय सेकेंड का स्क्वायर। That is the formula, so you can memorize this: v du minus u dv by v square, v du minus u dv by v square, v du minus u dv by v square। ठीक है, इसको मेमोराइज कर लीजिए, नहीं तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर नीचे आएगा, सेकेंड फंक्शन यहाँ उल्टा होता है, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, और माइनस साइन आता है। तो जब वहाँ प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल लेते हैं, प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आता है, और ये डिवीजन रूल में क्या साइन आता है, इधर माइनस साइन आता है। ऑलराइट, तो ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो द फर्स्ट एग्जांपल फिर से हम लोग लेंगे sin x बाय cos x ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज फंक्शन इज इक्वल टू sin x बाय cos x। तो आपको पता है sin x बाई cos x क्या होता है, वो tan x होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव आना चाहिए sec²x। तो लेट अस चेक आता है कि नहीं आता है, डिवीजन रूल से। ठीक है, डिवीजन रूल से आता है नहीं आता है। तो लेट अस स्टार्ट dy by dx, राइट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन u by v। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ v du
हो गया वी डी यू, देखो वी डी यू माइनस यू डी वी हो गया यू डी वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर, दैट्स ऑल, खत्म, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो गया, वो भी हो गया cos x, और माइनस sin x, और ये क्या है cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। आपको पता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, तो 1 बाई cos स्क्वायर x विच इज sec स्क्वायर x, तो ये आ गया। ठीक है, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो मैंने आपको ये चीज बताया डिवीजन रूल से। ऑलराइट, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, राइट, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, तो आई विल ड्रॉप दिस। ओके, तो ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, let's take the next example. So v du minus u dv by v square, v du minus u dv by v square, so you have to memorize it like this. It's very simple, just speak out 5 to 10 times and you can memorize it, right? Okay, so let's take the next example. That's example number 2. Example number 2. Okay, so let's take y is equal to, you know, e raised to x by sin x, something like this. Okay, so this is the first function u and this is the second function v. So dy by dx क्या होगा, वो होगा v du माइनस u dv divided by v square, that is sin square x. Alright, so now this will be sin x, e raised to x का डेरिवेटिव हमें पता है e raised to x ही होता है, और sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x होता है, डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। सो ये इसका आंसर है। आप चाहो तो e रेज टू x कॉमन ले लो, तो e रेज टू x कॉमन हो गया, और ये हो गया sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, आप ये कैंसिल मत कर देना, सर एक साइन और साइन कैंसिल कर दें, वो नहीं होता है कि नहीं है, वैसा मत करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल नाउ, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, और आप बीच में वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करते रहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अप टू दिस डिवीजन रूल, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस चेन रूल, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, चेन रूल, and then we'll discuss some applications. So we can still 3 more lectures to go for derivatives, right? Okay, so let us take few more examples here, the third example, and you can try it yourself. Okay, suppose we have y is equal to x square plus 5x divided by, let us say tan x. Okay, simple, this is u, this is v. So first of all, let's remind you, x square का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का, तो वो होगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, मतलब 2x। ठीक है, ओके। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, अब अगर 5 कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो वो डेरिवेटिव के बाहर लिया जाता है, जब भी कांस्टेंट अकेला होता है सिंगल पीस, ठीक है, यानी एक टच, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, बट जब मल्टीप्लाइड है तो उसको बाहर लेते हैं। तो ये 5 हो गया, और ये x रेज टू 1 है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, मतलब 5 इंटू 1, 5। ठीक है, ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx is equal to v into du, so v into du, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस u dv, u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और dv मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x। ओके, दैट्स इट। सो लेट्स राइट द आंसर। सो ये हो जाएगा tan x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 5
राइट, इसलिए मैंने अलग से बताया 2x और 5, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 10x का डेरिवेटिव क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर है। ऑलराइट, ये इसका आंसर है, ठीक है। कुछ कॉमन है नहीं इसमें, सो वी विल नॉट टेक एनीथिंग कॉमन। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इस तरह से करना है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा आज, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस चेन रूल। टिल देन